like to tell young people that मैं हमेशा जवान बहनों और भाइयों को इच्छा रखता हूँ कुछ कहने की। on the day of Pentecost, the leadership of the church was in the hands of 11 people who were under the age of 33. पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो कलीसिया का भार जिम्मेदारी अगुवाई करने का उन 12 के ऊपर आया जो उम्र में 33 के नीचे थे। See, Jesus was like the Jewish rabbis, and they never took disciples who were older than them. और यीशु मसीह जूइश थे, उसने ऐसे चेलों को नहीं जो उम्र में बड़े थे बनाया। They were all younger than him, just like in India, all the gurus and all always have people younger than them. जैसे हिंदुस्तान में बहुत गुरु जवान रहते हैं, उसी तरह उसने भी किया। Their disciples are always younger than them, are younger than the master. हाँ, अपने गुरु से उसके सब चेले जवान थे उसकी उम्र से। So, when Jesus started his ministry at the age of 30, all his disciples were younger than him. जब यीशु मसीह ने 30 साल में अपनी सेवा आरंभ की तब उसके सब चेले उससे उम्र में कम थे, जवान थे। And they had so many wrong ideas. और उन सबको बहुत गलत फहमियाँ थी। But they were totally yielded to Christ. पर वे सब यीशु के लिए तैयार थे। And just imagine, in 3.5 years, they were ready to be apostles, to lead the church. हम विचार करेंगे कि 3.5 साल में वे सब तैयार हो गए शिष्य बनने के लिए, कलीसिया का भार उठाने के लिए। Why is it we don't find such people today? ऐसा क्यों होता है कि आज ऐसे लोग हम नहीं बन पाते या हमें ऐसे लोग नहीं मिलते? Why do people think you've got to wait till you're 50 or 60 before you do something for the Lord? क्यों हम में से लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम 40-50 के हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे? I think that's the work of the devil. मैं सोचता हूँ ये एक शैतान का कार्य है। So I want to encourage all of you young people to believe that when you're young, God can pick you up and do something through you. मैं आप सब जवान भाई और बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उठाकर अपने लिए उपयोग कर सकता है। Because I believe in the world in which we live, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, we need a lot of young people who are a witness for Christ. हमें चाहिए कि बहुत जवान हो जो यीशु मसीह के लिए गवाह बने। Everywhere I go, I find young people are just drifting away from God. क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जवान लोग परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं। And they're going off into all types of worldly entertainment. और वे सब संसार के बुरे आनंद में चले जा रहे हैं। And they are turned away from church because they feel church is so boring. और वे कलीसिया से दूर जा रहे हैं क्योंकि वे सोच रहे हैं कलीसिया इतना उबाऊ हो चुका है। And they are right. A lot of churches are pretty boring. और बहुत बार वे सही भी होते हैं क्योंकि बहुत से कलीसियाएं उबाऊ भी हैं। And that is the fault of the older generation. और ये नए पीढ़ी का फाउंडेशन है। So but the young people, instead of just criticizing it, I want to encourage you to say, well, Lord, will you help me to change that? मैं इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जवानों को मुझे बदलने के लिए सहायता करेंगे। So you must pray like that to the Lord. इसलिए आपको इसी तरह से परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी है। You know, when I was converted, I was only 19 years old. मैं जब 19 साल का था तब मैंने मसीह को स्वीकारा। And I had asked the Lord Jesus to come into my heart many times in the previous years. और पुराने वर्षों में मैंने कितने बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे हृदय में आए। But I was not sure whether he had come. पर मुझे ये विश्वास नहीं था, अश्योरेंस नहीं था कि वो मेरे हृदय में आ चुका है। So I want to first speak to all those of you who are not sure whether you're really born again. और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उन सबको खातिर देना चाहता हूँ जिनका नया जन्म हो चुका है। नहीं, you're not sure. जिसको ऐसा खातिर नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका नया जन्म हुआ या नहीं। So you must be sure, otherwise you won't be able to grow spiritually. तो आपको ये दृढ़ निर्णय और विश्वास होना चाहिए, अन्यथा आप आत्मा में बढ़ नहीं सकते।
I don't know the date when I was born again, मुझे वो दिन याद नहीं जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, but that's not important. ये महत्व का भी नहीं है। Those who are born in Christian families, very often they don't know the exact date. क्योंकि बहुत लोग जो मसीह परिवार में जन्मते हैं उनको ये पता नहीं रहता वह दिन का। I have 4 sons. I don't think any of them know the exact date when they were born again. मेरे 4 पुत्र हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी एक को भी पता है कि उनका नया जन्म किस दिन हुआ। You know, because when you're in a Christian home, almost from the age of 3 onwards, parents urge you to give your heart to Jesus. क्योंकि जैसे आप मसीह परिवार में जन्म लेते हैं, 3 साल की उम्र से माता पिता आपको अपना हृदय यीशु मसीह को दे दो, ऐसा आपको सिखाते हैं। And we may ask Jesus to come into our heart 500 times. और हम परमेश्वर से 500 बार भी कह चुके रहते हैं हमारे हृदय में There's आइए। nothing wrong in that. ये कुछ गलत भी नहीं है, But one of those times will be real. और उनमें से एक बार वो सच्चाई भी हो सकती है, But we may not be sure. पर आपको उसकी खातरी नहीं रह सकती है। So I was also not sure. मुझे भी खातरी नहीं थी इस बात की। I said, how do I know whether he's come or not? मैंने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे हृदय में आया है या नहीं, Because you know, some people used to give fantastic testimonies क्योंकि बहुत से लोग अच्छी अच्छी साक्ष्य देते हैं, that some electric shock hit them or things like that. क्योंकि कोई ऐसे कहते हैं कि जैसा पवित्र आत्मा आया, हमारा नया जन्म हुआ, कोई ऐसा इलेक्ट्रिक जैसा करंट हमें लगा। Or some people had a very wild, wicked life, and then one day they went for a meeting and they were turned around. और किसका जीवन बहुत ही बुरा और बदतर रहता है और एक दिन वो सभा में जाता है और उसके बाद उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। But I was like most of us. I never lived a wild, wicked life. मैं हम आप सब में से बहुतों को जैसा था, मैंने ऐसा कोई बुरा और And गंदा जीवन नहीं जिया था, I didn't even have a good testimony to say. It was not very spectacular. और मुझे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, जरूरत नहीं था कि कोई अच्छा उम्दा मेरे पास साक्ष्य हो। I remember when I was a very young Christian, मुझे याद है जब मैं बहुत ही जवान मसीह था, I heard a man testify in a meeting who had been a murderer. मुझे पता है कि एक भाई अपनी साक्ष्य देता कि वो एक हत्यारा था। I'll never forget that. मैं कभी उसे भूला नहीं हूँ। He'd been a murderer. He was a gang of murderers. वो एक हत्यारा था और हत्यारों के ग्रोह में रहने वाला व्यक्ति था, He had pulled out people's intestines and done all types of terrible things. और उसने बहुत से लोगों को फाड़ा था, मारा था, ऐसी बहुत सी बुरी बातें उसने की थी। And one day he was on his way to commit a murder, एक दिन वह हत्या करने के रास्ते पर जा रहा था, and he saw some pretty girls, उसने एक अच्छी लड़की को देखा, a number of them going in some direction. So he followed them. बहुत सी लड़कियां थी, उसने उनको देखा और उनके पीछे चल And they पड़ा। went into a church, वो एक कलीसिया में जा रही थी and he sat there and he listened. और वह उनके साथ चला गया, वहाँ बैठा And he knelt down and he got converted, and his life was changed immediately. और उसने वहाँ उपदेश सुनकर, कुछ सुनकर परमेश्वर के सामने घुटने टेके और अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। And I was young and pretty stupid those days. और मैं जवान था, इतना मूर्ख था उन दिनों में, I said, boy, I wish I had a testimony like that. और मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरे पास भी काश कुछ You know, ऐसी गवाही होती। I wish I had murdered a few people and then suddenly got converted one day. मैं भी शायद कुछ लोगों का हत्या कर चुका रहता और फिर एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा बदलाव आता। But as I grew up, I said, thank you, Lord, I didn't murder anybody. जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर धन्यवाद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया You था। know, when we are young and we've grown up in Christian families, we wish we had a spectacular testimony. जब हम जवान रहते हैं और मसीह परिवार में जन्म ले चुके रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई उम्दा गवाही हो। But I think only 1 in a million have that type of testimony that they were murderers and they got converted in one moment. लेकिन ऐसी गवाही लाखों में किसी एक की रहती है। But you know, I have found with my very simple testimony that I never did any gross evil. लेकिन मेरे जीवन में एक छोटी सी हल्की सी साक्ष्य थी कि मैंने कोई ऐसा बड़ा बुराई और पाप नहीं And किया था। I didn't suddenly get converted in one moment. I heard and responded and heard and responded 500 times, and one of those times I got converted. I don't know when. मुझे पता नहीं था कि 500 बार मैंने पुकारा है परमेश्वर को मेरे हृदय में आने के लिए, कौन से बार मैं सच्चा था और मेरी सुन ली गई है। You know what I found? मैंने क्या देखा आप जानते हैं? More people were helped by my testimony than that man's testimony. मैंने यह अद्भुत देखा कि बहुत से लोग मेरे साक्ष्य से प्रभावित हुए बजाय इसके कि उस भाई के। Because most of us live very ordinary lives. हम में से, क्योंकि हमारे में से बहुत लोग एक साधारण जीवन जीते हैं। I never had electric shock in my whole life. I mean, I did get one once when I touched an electric wire, but other than that, I never got any electric shock. मेरे जीवन में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक शॉक पवित्र आत्मा या नया जन्म मिलते समय नहीं हुआ। कदाचित किसी बार इलेक्ट्रिक शॉक से मेरे जीवन में करंट आया, But I never had any spiritual experience like that. लेकिन आत्मिक रीति से ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। I've never seen a light or never seen Jesus
मैंने कभी physically. ऐसा प्रकाश को या यीशु मसीह को नहीं देखा। I never heard God even once with these years. मैंने एक बार भी यीशु मसीह को अपने इन कानों से नहीं सुना। My life has been a very ordinary, unspectacular life. मेरा जीवन एक साधारण था, कोई भी ऐसा विशेष और खास मेरा जीवन नहीं था। My whole life I have lived by faith, not by sight, because I've never seen or heard anything. मेरा पूरा जीवन मैंने विश्वास से जिया है, देखकर नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। I used to sometimes wish, I wish I could see Jesus physically. मैंने ऐसे बात बहुत बार चाहा कि शायद मैं यीशु मसीह को फिजिकली देह में एक बार देखा Oh, that होता। would really solve all my problems. और ऐसा देखने से, ऐसा होने से मेरे जीवन में मेरे बहुत समस्याएं हल हो जाती। I suppose I would talk about that for the rest of my life if I saw it. तो मैं शायद इसी विषय पर मेरे पूरे जीवन भर कहता रहता, बोलता रहता। And then everybody else would get discouraged who hadn't seen Jesus like me. और इसी तरह सब लोग निराश हो जाते, दुखी हो जाते, जिन्होंने इस तरह से यीशु मसीह को नहीं देखा होता। But the Lord gave me a verse which really encouraged me once. पर परमेश्वर मुझे एक ऐसा वचन दिया और जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी, धैर्य दिया। The first verse I'll tell you was John 6:37, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 37वां वचन, where one day I just read this. जब मैंने एक बार पहली बार इसे पढ़ा, I was 19 and a half years. मैं 19.5 साल का था। And I read here the last part, John 6:37, him that cometh to me, I will never cast out. तब मैंने वहाँ यह पढ़ा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। I said, Lord, I've come to you about 500 times or 1,000 times, I don't know. तब मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपके पास 500 या कदाचित 1000 बार, मुझे पता नहीं है, आया हूँ। The Lord said, according to this verse, I haven't cast you out, believe it. तब परमेश्वर ने अपने वचन से कहा, मैंने तुझे यहाँ बताया है कि तू जब मेरे पास आया मैं तुझे नहीं निकालूंगा। See, when I say the Lord said, I have to explain that. जब परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है तो मुझे जरूरी है आपको समझाना। never with my ears. It is not with these ears that I heard. ये मेरे शरीर के कानों से सुनाई नहीं दिया। I heard the Lord speak to me from this verse in my heart. That's what I mean. मेरे हृदय के कानों में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात की, Because I believe this is God's word. क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का वचन है। That also, some people ask me, you guys are blindly believing one book. Who said it's God's word? और कई लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसा ही अंधे जैसा आप इस वचन पर, एक किताब पर कैसे विश्वास करते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। I said 50 years ago, if you asked me, I would not be able to give you any proof that it is God's word. मैं उन्हें उत्तर देता हूँ, अगर 50 साल पहले आप मुझसे मिले होते तो मैं कदाचित इसका उत्तर नहीं दे पाता कि ये परमेश्वर का वचन है। Today I can say लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूँ, that I have read this book and claimed its promises for 50 years. मैंने ये किताब पढ़ा है और 50 साल इसके प्रतिज्ञाओं पर मैंने दावा किया है। And God has never once let me down. और परमेश्वर ने कभी भी मुझे एक बार भी नीचा होने नहीं दिया। I'm willing to risk my life to stand on the fact this is the word of God. मैं अपना जीवन भी देने के लिए, इस सच्चाई पर खड़ा रहकर जीवन देने के लिए भी तैयार हूँ कि यही परमेश्वर का वचन है। like if somebody asks in some time of persecution, जैसे किसी सताव के समय कोई आकर पूछे, if somebody asks me, अगर कोई आपसे पूछता है, are you willing to lose your life for the sake of the Bible as God's word? कोई आकर कहे कि आप अपना जीवन दे सकते हो और यह कहते हुए कि यह परमेश्वर का वचन है, Just say these words, I'm not sure whether the Bible is God's word and we'll spare your life. और ये केवल कह दो कि ये परमेश्वर का वचन है, मैं इतना दावे से नहीं कहता और अपना जीवन बचा लो। I'd say, no, I won't say that. और मैं उस समय कहूँगा नहीं, मैं यह नहीं You can कहूँगा। take my life. I believe the Bible is God's word. आप मेरा जीवन भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, कि मैं कहूँगा ये परमेश्वर का वचन है। That's how much I'm convinced today. इतना मैं आज इससे कन्विंस हो चुका हूँ। But I was not so convinced in the beginning. और इतना मैं सांत्वना उन दिनों में नहीं पाया था।